Now, before I start talking about IoT, what it is and how it is changing the world, I want to just understand from any of you, only from trainees, of course, not from everyone. What is your definition of IoT or Internet of Things? Any idea, guys? Anyone? Give me some. Even if you don't know, don't worry. It's not a test. Just give me your guess. What is Internet of Things? What exactly you mean by Internet of Things? So we're connecting actually machines with the. Actually, we're controlling the machine with the mobile, or you can say. No, see, that's of course that's a good definition, but that's the explanation. Any other guess? Who was this? It was It's RP, right? exchange of data Exchange of data between. through softwares and other physical objects. Yes, that is one big aspect of IoT. You are right. So exchange of data, connecting machines together. Yes, you are right. Anyway, so just to give you, are you able to see my screen, everyone? Hello. Yes, sir, we can. Yes, yes, sir. Now, before we talk about IoT, let's look at how this world has changed in last 20 years, 2 decades. And then let me tell you, the change which has happened in the last 2 decades is equal to the change which happened in the world in last 1,000 years. In last 1,000 years, we have moved from Industrial Revolution 0 to Industrial Revolution 4. And I will explain you what that means. Now, if you look at today's world, very interestingly, very interestingly, we are living in a world where some things cannot be explained. Some things cannot be explained. आज से 30 साल पहले अगर आप किसी से पूछते 30 साल, चलो यहाँ पे हमारे काफ़ी ट्रेनिज हैं जो अभी तक 30 साल हुए नहीं होंगे, बट चलो 20 साल 25 साल पहले अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी कौन सी है, तो वो बोलेगा एम्बेसडर 30 साल पहले, उसके बाद मारुति, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर फॉरेन ब्रांड आ गए, hyundai आ गया, फिर GM आ गया, फिर अभी फोर्ड, अभी आल्टो, आज ऑडी, एवरीथिंग. बट लुक एट दीज 4 नेम्स, दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी को, हमारा सिंपल एक मतलब होता है वो कौन सी कंपनी इस पर ज्यादा कारें हैं, ये ज्यादा कार बना रही है. लेकिन आज अगर हम यही डेफिनेशन इन कंपनीज पे पूछें, फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू which is world's biggest cab company or taxi company, answer is Uber. Uber has more than I think close to 50 to 60 lakh cars in the world, cabs. 50 to 60 lakh, इतना शायद किसी के पास नहीं होगा. लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं वेरी सरप्राइजिंगली कि Uber does not even own a single cab. दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी, लेकिन उसके पास एक भी अपनी कैब नहीं है. फिर ये कैसे हो सकता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी कैब कंपनी बन गई? क्योंकि they created a technology which makes it easier for anybody to call a cab, and all the cabs are registered on that technology or that platform. That is why Uber is world's largest taxi company but has no. Similarly, Facebook, बिगेस्ट मीडिया ओनर, जितना दुनिया का डेटा है, वीडियोस हैं, वो सब फेसबुक के ऊपर है. लेकिन फेसबुक खुद कुछ भी क्रिएट नहीं करता. नाउ दिस इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूंगा लेट अस क्रिएट अ कंपनी कि हम उस पर करोड़ों के हिसाब से डेटा रखें या पिक्चर्स रखें या वीडियोस रखें, लेकिन हम कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, हम कोई पिक्चर नहीं खींचेंगे, फिर हम दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया कंपनी कैसे बन सकते हैं? और वो हुआ विद फेसबुक, क्योंकि दुनिया में लोगों ने फेसबुक पे जाके खुद कंटेंट रखना शुरू कर दिया. एंड फेसबुक टुडे इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंटेंट कंपनी, जबकि उन्होंने खुद एक भी कंटेंट नहीं रखा, खाली प्लेटफॉर्म बनाया. सिमिलरली यू लुक एट अलीबाबा, यू लुक एट एयरबीएनबी और जितनी भी लेटेस्ट कंपनीज हैं और ये स्टार्टअप्स जो पैदा हुए पिछले 20 साल में, उन सब का एक कॉमन फीचर ये है कि दे क्रिएटेड समथिंग which helped them to become leaders in their field without even
without even owning a single asset. The world has changed in last 20 years because of one thing जो इन सब में common है, वो है digital platform. Uber, Facebook, Alibaba, Airbnb, Amazon.com, Flipkart.com, कुछ भी ले लो आप, उन सब में एक चीज जो कॉमन है वो है डिजिटल. इन सब ने सिर्फ एक काम किया, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, एंड दे बिकेम बिग. They became so big कि Amazon is today world's biggest market capitalized company with $2 trillion capital. जितना पूरा इंडिया का जीडीपी है उसका 2/3, 75% खाली Amazon की वैल्यू है पूरे दुनिया में, खाली. अब आप ये सोचो कि Amazon के पास अपना एक भी प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए, लेकिन वो दुनिया की सबसे बड़ी शॉप है. So digital technology in last 20 years has made this disruption, made this happen कि आज हम एक ऐसी सिचुएशन में हैं कि आने वाले कल में एवरी कंपनी, चाहे वो साबुन बेच रही है, तेल बेच रही है या कपड़े बेच रही है, वो अपने आप को एक टेक्नोलॉजी कंपनी ही बोलेगी, क्योंकि चलाने के लिए उन सब कंपनीज के पीछे सिर्फ एक ही चीज होगी, वो होगा सॉफ्टवेयर और डिजिटल. एंड दैट इज वेयर द वर्ल्ड इज मूविंग. Last 20 years, we have seen a big change in the world as far as digital is concerned. Everything is getting connected. शुरू में जब इंटरनेट आया या कंप्यूटर्स आए, नेटवर्क आया, तो खाली कंप्यूटर कनेक्ट होते थे. नेटवर्क बनाया इसीलिए गया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा भेजा जा सके, राइट. पहले वो वायर के थ्रू भेजा गया, बाद में वायरलेस बना. लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने क्या किया, हमने बाकी चीज़ों को भी कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ना शुरू कर दिया. प्रिंटर हमने कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया, ज़ेरॉक्स मशीन जोड़ दिया, बाद में फ़ोन आया तो फ़ोन जोड़ दिया, कैमरा आया तो कैमरा जोड़ दिया. आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसी सिचुएशन में आ गए आज कि बिल्डिंग्स, कार्स, पेड़ पौधे, मतलब अगर आप एक स्मार्ट सिटी की बात करो तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड. Everything is getting data and everything is sending data to another thing. So that is exactly what the basis of Internet of Things is. Connecting every physical and human device to a common network, and that common network is Internet. पहले सिर्फ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते थे, फोन्स कनेक्ट होते थे, या लोग एक दूसरे. आजकल क्या है, मेरा घर, मेरा फ्रिज, मेरी गाड़ी कनेक्टेड. मैं अपनी गाड़ी का एग्जांपल देता हूँ आपको. ये मेरी दिस इज माय 5th कार एक्चुअली इन माय करियर, इन माय लाइफ. मैंने पहली कार आज से 20 साल पहले ली थी, मारुति 800, जिसमें कंप्यूटर के नाम पे कुछ नहीं था. आई एम शोइंग यू द एवेल्युएशन. नॉर्मल कार आपने देखा होगा, फर्स्ट कार 2000 में मैंने खरीदी थी, दैट वाज अ मारुति 800 वाइट कलर कार. और उस वक्त मारुति 800 खरीदना बहुत बड़ी बात होती थी, क्या मैंने भी कार खरीदी. उसके 2-3 साल बाद आल्टो आई तो मैंने एक्सचेंज कर दी, मुझे एक एक्सचेंज ऑफर मिला, मैंने कर दिया. तो आल्टो में एक जो चेंज हुआ मारुति 800 से आल्टो में, वो था इलेक्ट्रॉनिक. मारुति 800 में हर चीज मुझे अपने हाथ से करनी पड़ती थी. आपने देखा होगा पुरानी कारें, जो हमारे ट्रेनीज हैं, नए हैं, सब अभी छोटे हैं. पुरानी कारों में हैंडल घुमाना पड़ता था शीशा ऊपर नीचे करने के लिए. लेकिन जब मैंने आल्टो खरीदी, आल्टो बिल्कुल नई आई थी मार्केट में शुरू 2002-3 में, तो आल्टो में एक बड़ा चेंज जो मुझे मिला कि उसके जो शीशे थे और लॉक थे वो इलेक्ट्रॉनिक लॉक थे. मैं एक लॉक बंद करता था तो सारे लॉक बंद हो जाते थे. मैं एक शीशा ऊपर नीचे बटन दबा के कर लेता था. ये फायदा हुआ, तो चीज इलेक्ट्रॉनिक बन गई. उसके बाद जब मैंने तीसरी कार ली, मैंने शिफ्ट किया दिल्ली टू बेंगलोर. अपनी दिल्ली वाली कार अपने पेरेंट्स के घर में कश्मीर में छोड़ के आ गया. बेंगलोर आके मेरी कंपनी ने मुझे एक कार दी, फोर्ड आइकन. इंडिया में बिल्कुल नई फोर्ड आई थी तब. फोर्ड आइकन में मुझे एक चेंज जो उससे ज्यादा मिला वो था इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, कि अब मुझे स्टीयरिंग को ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक. जैसे मैं स्टीयरिंग थोड़ा सा घुमाता हूँ पूरा स्टीयरिंग घूम जाता है. दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग. सो दैट वाज अनदर एडवांटेज ऑफ फोर्ड. तो ऑफ कोर्स दैट वाज अ कॉस्टली कार. फिर उसके कुछ साल बाद मैंने होंडा सिटी खरीदी. तो होंडा सिटी में इन सब चीजों के अलावा मेरे को एक बड़ी चीज मिली, वो था मैप, नेविगेशन, ब्लूटूथ एंड मीडिया. सामने एक स्क्रीन लगा हुआ था जिससे मैं अपना फोन, कोई भी कॉल आएगी मैं फोन सुन सकता हूँ कार के अंदर. आज तो ये सब चीजें नॉर्मल लग रही है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हम सब में कई लोगों ने ये एवोल्यूशन देखा है. फिर उसके बाद मेरे पास आई इलांट्रा. इलांट्रा में पहली बार मैंने कार ली जिसमें एक प्रोसेसर था. जब मैं कार खरीदने गया, मेरे को एक डॉक्यूमेंटेशन मिला तो उसमें लिखा हुआ था कि आपकी कार में एक प्रोसेसर है
जो क्या काम करता है, जब भी कार चलती है, एक किस्म का कंप्यूटर है, उसके जितने भी पैरामीटर हैं, स्पीड, टेम्परेचर, टायरों की हवा, सब कुछ वो कंप्यूटर चेक करता है, हमें कुछ नहीं बताता, वो चेक करके अपने पास रिकॉर्ड रखता है। उसका फायदा क्या होता है कि अगर आपकी कार खराब हो जाए या आप कार सर्विस के लिए ले जाओगे, तो उन लोगों को, कंपनी को ये आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि कार में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, कार ने कहीं झटका तो नहीं दिया, बंद तो नहीं होगी, क्योंकि वो सिर्फ उस कंप्यूटर में एंटर करके देख लेते हैं कि पिछले 6 महीने में या 3 महीने में जब भी सेकंड सर्विस में ले गया, उस कार में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं या क्या क्या फीचर्स हो, ये पैरामीटर हो, कितना चल चुकी है, कितना पेट्रोल खाया, कितना ये, वो सब उसमें कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गया। नाउ दैट वाज ए बिग एवोल्यूशन कि भाई अब मैं कार ऐसी ले ली है जो जो कंप्यूटर से चल रही है थोड़ी बहुत। लेकिन मुझे सबसे बड़ा शॉक या सरप्राइज वो था जब मैंने अपनी लेटेस्ट कार खरीदी, अभी अभी 2 साल पहले, मर्सिडीज CLA 2000 स्पोर्ट। और वो कार खरीद के सबसे पहली बात जो मुझे पता चली कि मेरे को काफी चीजें जो है मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ कार के अंदर। एंड माय कार टुडे हैज 16 प्रोसेसर्स इन दैट कार। एंड बिलीव मी, मेरे को कार खरीदते वक्त उसके साथ एक CD मिली जिसपे लिखा था मर्सिडीज बेंज ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 4.0। मैंने कहा भैया ये क्या है? बोले आपकी कार में ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर में होता है, अगर वो खराब हो जाए तो ये CD से आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं और हम अपडेट भेजते रहेंगे। तो मेरी इस वक्त जो प्रेजेंट कार है वो 16 प्रोसेसर विद इनबिल्ट स्टोरेज, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑटोमेटिक इन दैट, फुल्ली ऑटोमेटिक। मेरी कार में वो खत्म हो गया, गियर भी गायब हो गया, सब कुछ गायब हो गया। एंड इट्स सो ऑटोमेटिक कि अगर मैं कार चला रहा हूं तो वो मुझे अलर्ट दे देता है सामने स्क्रीन पे कि आपके टायर की हवा इतनी कम हो रही है एट द रेट ऑफ दिस पर मंथ। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो अगले 5 घंटे के बाद आपका टायर फ्लैट हो जाएगा, तो उससे पहले आप हवा भरवा लो। नो, इन लास्ट 20 years, एग्जैक्टली 20 years, 2000 में मैंने पहली कार खरीदी और 2020 में आई हैव सीन कि मेरी कार 0 कंप्यूटर से शुरू होकर 16 प्रोसेसर तक आ चुकी है। एंड टुडे माय कार इज 100% कनेक्टेड। नो टोल टैक्स, रुकने की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक दरवाजे खुल रहे हैं, टोल खुल रहा है, ये खुल रहा है, वो खुल रहा है। So if you look at the world today, this is close to 1 year old slide, but 50 billion smart objects हो चुके थे 2020 के शुरू में, और अगले 5 साल में तो मतलब everything on this planet, total number of people on this planet, you know how many are there? 7.5 billion. तो 50 बिलियन क्या है? कंप्यूटर्स, फोन्स, आपके घर, आपका फ्रिज, आपका टीवी, स्मार्ट टीवी, सब कुछ कनेक्टेड है। और आने वाले समय में थिंग्स विल बी सो कनेक्टेड कि देयर इज अ जोक, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट विल बी, कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होगा उसकी बॉडी में एक चिप डाल दिया जाएगा, पूरी जिंदगी वो चिप सब कुछ रिकॉर्ड करेगा, सब कुछ ट्रैक करेगा। बच्चे में थोड़ी भी प्रॉब्लम आएगी, बीमार होगा, तो ऑटोमेटिकली वो चिप डॉक्टर को मैसेज भेज देगा, एंड सो आई डोंट नो वो अभी कितना जल्दी होगा, बट टुडे वी आर कनेक्टेड ऑलमोस्ट टू एवरीथिंग अराउंड अस। नाउ ये कैसे हुआ? ये हुआ इंटरनेट की वजह से। स्टार्टिंग विद 95 जब इंटरनेट आया, दैट वाज प्योरली टू जस्ट ट्रांसफर डेटा। लेकिन इंटरनेट इटसेल्फ चेंज्ड सो फास्ट कि डेटा चेंज करने, उसके बाद टेक्स्ट हुआ जो मोबाइल से हम भेजते थे, फिर मोबाइल पे हम पिक्चर्स भेजने लगे, वीडियोस भेजने लगे, फिर व्हाट्सएप आ गया, फिर व्हाट्सएप से हम एक दूसरे को सब कुछ भेजने, वॉइस कॉल्स, वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल्स। एंड टुडे we have reached a state कि अब इंटरनेट ऑफ थिंग के बाद now we are looking at internet. Now this internet everything is a Cisco evolution. Cisco said कि इंटरनेट ऑफ थिंग पुराना हो गया, अब हम आ गए इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ कनेक्टेड है। एंड देन वी हैव माइक्रोसॉफ्ट which says internet of your things. Then we have Dell which says intelligent quotient of things, कि हर चीज को इंटेलिजेंट बना दिया जाए। So कुल मिला के इंटरनेट ऑफ थिंग और IoT itself has changed a lot. Now what is IoT? Let us look at what exactly IoT means. So before we talk IoT, we talk about fourth industrial revolution. आप सबने हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा, पूरी दुनिया में जब से मैकेनिकल चीजें आई हैं, मतलब पहले तो लोग हर चीज हाथ से करते थे, एवरीथिंग वाज हैंडमेड, आज से मतलब 700 साल पहले या 600 साल पहले।
स्लोली मशीनें आनी शुरू हुई। तो पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो हुआ स्टीम इंजन और मैकेनिकल की वजह से, कि लोगों को हाथ से घसीटना नहीं पड़ता, उसकी जगह पुलीज लगा दिया, हैंडल लगा दिया और चीजें अपने आप हो रही हैं। अपने आप इन द सेंस आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जैसे कि एक शुगर केन मशीन होती है ना, उसको हैंडल घुमाते रहो तो शुगर केन निकलता रहता है। या पहले वो मिक्सी होती थी घरों में, शायद पुराने किसी घर में पड़ी हो, जो हाथ से हैंडल हिलाते थे, ऊपर से हम कुछ डालते थे, नीचे से वो आटा निकल आता था, चक्की जिसको बोलते थे हाथ से। तो ये जो चीजें थी ये मैकेनिकल चीजें होती थी। सो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच हैपेंड इन द बिगिनिंग ऑफ 18th century was actually a revolution created by mechanics, steam and पुलिस। तो हर चीज एक मैकेनिकल सिस्टम से चलना शुरू हुई। दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1। दैट मेड थिंग्स मच बेटर, क्योंकि लोगों को अब उतना मेहनत नहीं करना पड़ता था कि पत्थर उठा उठा के पहाड़ी पे जाना, उसकी जगह एक पुली लगा दिया, वो अपने आप पत्थर ऊपर नीचे कर देता था। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वेयर पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1। उसके बाद जो सेकंड रेवोल्यूशन आया वो है इलेक्ट्रिकल की वजह से। एट द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ 19th century 1890s में इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को उन्होंने बिजली से जोड़ दिया। तो जो काम करने के लिए पहले हैंडल घुमाना पड़ता था, उसके लिए अब बिजली उसको घुमा रही थी। जैसे फैन बना, पहले फैन के लिए हाथों से घुमाना पड़ता था, फिर बिजली आई, फैन अपने आप चलने लगा। सो दैट वाज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2। देन वी एंटर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। 1950-60s में इलेक्ट्रॉनिक्स आया। आप में से अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की होगी तो उसको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इटसेल्फ हैव गॉन थ्रू एवोल्यूशन, फ्रॉम वॉल्स टू ट्रांजिस्टर्स, ट्रांसफॉर्मर्स टू एलईडीज टू वॉल्व्स। वो सब होते होते आज हम एक डिजिटल एज पे खड़े हैं। सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3 वाज मेड पॉसिबल बाय कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और उसके बाद आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4, जहां हर चीज नेटवर्क से चलने लगी, इंटरनेट से चलने लगी। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल टुडेज वर्ल्ड एज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नाउ वी आर लुकिंग एट फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आएगा, जो ऑटोमेटिक होगा, यानी 100% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। रोबोट अपने आप काम करते रहेंगे, ड्रोन्स अपने आप उड़ते रहेंगे, लोगों को खाली बोलने की बात है, घर के अंदर घुसे लाइट्स अपने आप ऑन, फ्रिज अपने आप ऑन, एसी अपने आप ऑन, घर के बाहर निकले सब अपने आप ऑफ। आपकी कार घर के पास पहुंची है तो घर को पता चल जाएगा कार आ रही है तो गेट खोल दिया जाए। तो ये सब चीजें जो है दैट विल बी पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 5, बिकॉज दैट विल बी लेड बाय 2-3 थिंग्स। वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकंड इज द स्पीड विच इज 5G, जो अभी आने वाला है, अभी टेस्टिंग चल रही है, एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट इज कि everything will have a neural network. Neural in the sense thinking network, networks which can think about itself, and everything will have a common factor to drive, that is data. Data is the new oil. So we are in industrial revolution 4.0 today, and that is where IoT has become the mass driving force. And if you look at these number of devices, look at this, starting with just 1 lakh devices in 1992 to today we are standing at 50 billion devices. मतलब कि दुनिया में हर दूसरी चीज ही कनेक्टेड हो गई है। जितनी मेडिकल ले लो, आप गाड़ियां ले लो, अब गाड़ियां भी नई आ रही हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, एवरीथिंग इज गेटिंग कनेक्टेड टू इंटरनेट। सो थिंग्स विल ऑटोमेटिकली टॉक टू। हमें ये भी नहीं बताने, हमें घर को ये नहीं बताना भैया कोई आ रहा है तो दरवाजा खोलो, नहीं, घर खुद सेंस करेगा ये जो बंदा आ रहा है ये ऑथराइज्ड है, उसका फेस रिकॉग्निशन होगा, उसका ऑटोमेटिकली रेटिना स्कैन हो जाएगा या उसका फिंगरप्रिंट स्कैन होगा, घर का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। दीज आर थिंग्स विच आर बीइंग ड्रिवन टुडे बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4। नहीं, अगर मैं आपको लेकिन एक बात बोलूं कि ये IoT कोई नई चीज नहीं है। इसका जन्म आज से कोई 30-40 साल पहले हो गया था इसके शेप में। आप सब ने अपने घरों में ये चीज जरूर देखी होगी और यूज कर रहे होंगे। मेरे हिसाब से जो सबसे पहला IoT का फंडा था वो एक रिमोट था, जो बटन दबाते ही टीवी ऑन कर देता था, चैनल चेंज कर देता है या टीवी को ऑफ कर देता है, साउंड बढ़ा देता है बिना टीवी को छुए। दैट इज एग्जैक्टली, आई शुड से, द फर्स्ट एंड द बेसिक एग्जांपल ऑफ IoT। एक ऐसी डिवाइस जो एक दूसरे से बातें करती हैं, टीवी और रिमोट आपस में बात कर रहे हैं। That was the first instance of Internet of Things in your homes. उसके बाद तो एवरीथिंग, आज हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटीज की, जहां पे बिल्डिंग्स, कार्स, ट्रैफिक सिग्नल्स, डस्टबिन्स, दे ऑल टॉक टू ईच अदर, दे ऑल टॉक टू ईच अदर। हमारा हेल्थ केयर, हमारा शॉपिंग, हमारा ट्रेवल,
हमारे घर के अप्लायंसेस, चाहे फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, या आपकी बॉडी के ऊपर जितनी चीजें लगी हैं, चाहे आपकी वॉच हो, everything is getting connected to internet today. But it all started with a very basic foundation. And मेरे हिसाब से remote was and is the first example of a real IoT, where two machines are talking to each other. बीच में इंसान को आने की जरूरत नहीं पड़ती. The person who founded this word, his name was Kevin Ashton. He actually created this word or this phrase called Internet of Things. केविन एस्टन यूज्ड टू वर्क फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर कंपनी, आपने नाम सुना होगा, आज टीवी पे घरों में हम लोग यूज करते हैं हजारों प्रोडक्ट प्रॉक्टर एंड गैम्बल के. प्रॉक्टर एंड गैम्बल इज द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट, उस वक्त वर्ल्ड की सबसे बड़ी थी, अभी सेकंड बिगेस्ट हो गई है कंज्यूमर कंपनी और एफएमसीजी कंपनी. एज वी कॉल, तेल, साबुन, शैम्पू आपने यूज किए होंगे, सारे के सारे क्लिनिक प्लस और ये सब जितना भी है. प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम कर रहे थे केविन एस्टन. उनको एक आइडिया आया 1999 में कि हमारे ऑफिस में या सॉरी दुकानों में जो चीजें होती हैं वो कैसे बता सकेंगी कि भैया मेरा माल खत्म हो गया, नया माल भेजो. या कोई वेयर हाउस है, वो ये कैसे बताएगा कि मेरा जो स्टोरेज है वो कम होता जा रहा है, तो नया माल भेजो जल्दी से. तो ये चीजें ही स्टार्टेड रिसर्चिंग एंड ही क्रिएटेड दिस फ्रेज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेइंग कि अगर कंप्यूटर की वजह से मदद से हम लोग ऑटोमेटिक मैसेजिंग कर सकें तो ये काम आसान होगा. टुडे इट्स हैपनिंग एवरीवेयर. आपने शायद एक वीडियो नहीं देखा होगा, कभी टाइम मिले तो देखना. Amazon.com के वेयर हाउस में, बड़े वेयर हाउसेस में सारा सॉर्टिंग का काम रोबोट्स करते हैं. माल को कहाँ ले जाना है, कहाँ भेजना है, कहाँ डिस्पैच करना है, कहाँ पैकिंग करानी है, सब कुछ रोबोट्स करते हैं. उसका एक वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा. सो हमने शुरुआत तो कर दी डिवाइसेस को आपस में जोड़ के, फिर उसके बीच में एक दूसरे को डेटा भेजना शुरू कर दिया. फिर बाद में हमें समझ आया कि डेटा भेजना काफी नहीं है, उस डेटा के ऊपर वी शुड डू सम वर्क, यानी वी शुड एनालाइज द डेटा. फिर जब डेटा एनालिसिस कर लिया एंड वी गॉट द रियल इंफॉर्मेशन, व्हाट डू वी डू विद दैट इंफॉर्मेशन? वी शुड यूज दैट इंफॉर्मेशन टू क्रिएट सम न्यू मीनिंगफुल इंसाइट्स. एंड उसके लिए हम एक एप्लीकेशंस बना देते हैं जिसको हम एप्स, मोबाइल में एप्स रख देते हैं. एंड फाइनली वो जो इंफॉर्मेशन है वो हम डिलीवर करते हैं. दिस होल पिरामिड फ्रॉम फाउंडेशन टू डिलीवरी इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स. एंड दैट हैज लेड टू क्रिएटिंग दिस what I call 8 C's of IoT data cycle. This is something I created when I was working with Cisco and copyrighted it. So this is 8 C's of IoT data cycle means जितना भी IoT के ऊपर डेटा फ्लो हो रहा है उसमें 8 C होते हैं. C का मतलब, पहला C हो गया कनेक्ट करना, डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना थ्रू इंटरनेट. लेकिन जब हम बात इंटरनेट की करते हैं तो कनेक्टिविटी मीडियम डिफरेंट, कुछ चीज़ें वायरलेस के थ्रू कनेक्ट होती हैं, कुछ चीज़ें वायर्ड के थ्रू कनेक्ट होती हैं. आजकल नए प्रोटोकॉल आ गए हैं, जिगबी, लोरा, लैन, एलपी वैन. तो ये सब वो कनेक्टिविटी मीडियम्स हैं जो आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, दैट्स कॉल्ड कनेक्शन, सी. सेकंड सी इज कलेक्टिंग. तो दूसरे सी में क्या होता है कि जब हमने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिया आपस में, फिर उनका डेटा कलेक्शन होगा. एक डिवाइस से डेटा दूसरे डिवाइस में जा सकता है, राइट, वो ऑटोमेटिक होगा. उसके बाद वो जो डेटा जाएगा उसको हम कोलेट करेंगे. कोलेट का मतलब क्या है कि किसी डिवाइस से डेटा आएगा लैंग्वेज ए में, दूसरी डिवाइस से डेटा आएगा लैंग्वेज बी में. तो हमें कैसे समझ आएगा? तो उसके लिए हमने एक कॉमन लैंग्वेज बना दी विच इज कॉल्ड आईपी लैंग्वेज. सो एवरी डेटा विच कम्स आउट ऑफ डिवाइसेस हैज टू डू ए प्रोटोकॉल कन्वर्शन, यानी कि लैंग्वेज चेंज करना पड़ता है उसका. दैट्स कॉल्ड प्रोटोकॉल कन्वर्शन और दैट इज कॉल्ड कोलेटिंग द डेटा. सो जब हमने डिवाइस कनेक्ट किया, फिर कलेक्ट किया डेटा, फिर उसको कोलेट किया, उसके बाद उस डेटा को कंप्यूट किया, यानी कि एनालाइज किया कि इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन. जब वो इंफॉर्मेशन निकल गई तो उस इंफॉर्मेशन को हमें कंजर्व करना पड़ता है, यानी सेव करना पड़ता है, दूसरों को भेजना पड़ता है, कम्युनिकेशन. एंड थर्ड, उसको यूज करना पड़ता है. जब ये सारे सी हो जाएंगे अच्छी तरह, it will bring a change. And let me give you one example how these C's work. Let's take an example of a smart city, and within smart city let's take example of traffic intelligence. आज की डेट में आपने देखा होगा हर सिटी में एक रेड सिग्नल है जहां पे रेड, ग्रीन और ऑरेंज लाइट होती है. गाड़ियां आती हैं, रुकती हैं, और वो टाइम के हिसाब से चलता है. अभी 2 मिनट इधर, 2 मिनट उधर, 2 मिनट इधर, ताकि सबको मौका मिले. लेकिन कई बार क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि आप जा रहे हो, रास्ता खाली है, फिर भी आपको रेड लाइट मिलेगी.
क्योंकि वो टाइम के हिसाब से चल रहा है। और दूसरी टाइप से जहां से भीड़ कुछ भी नहीं है वहां ग्रीन लाइट होगी, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा बिकॉज यू कांट जंप द सिग्नल। इफ यू जंप द सिग्नल यू विल बी पेनलाइज्ड, आपको चालान कटेगा। सो वी क्रिएटेड ए सिंपल, वेरी सिंपल algorithm for that, which I actually created for a customer, which was the Municipal Corporation of Jakarta in Indonesia in 2009. जब जकार्ता ने सिस्को को ऑर्डर दिया कि हम एक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएं, तो मैं वहां एज अ कंसल्टेंट आई वेंट देयर एंड आई लुक्ड एट दैट एंड आई सेड ओके, अगर हम ये ट्रैफिक लाइट को गाड़ियों के नंबर से जोड़ दें कि जितनी गाड़ियां आएंगी उसके हिसाब से ट्रैफिक लाइट को पता चल जाना चाहिए कि इस साइड से ज्यादा गाड़ी आ रही है तो इस साइड मुझे ग्रीन रखना है, जहां से बिल्कुल कम गाड़ी आ रही है वहां पे मुझे रेड रखना है। लेकिन वो कैसे होगा? ट्रैफिक लाइट और गाड़ी आपस में कैसे बात करेंगे? एंड दैट इज वेयर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कम इन। सो व्हाट आई सेड इज ओके, लेट्स पुट डाउन, सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड दिस सोल्यूशन एंड यू जस्ट विजुअलाइज इट। मैं आपको अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे मिला नहीं वो वीडियो, बट मैं आपको एक विजुअलाइजेशन देता हूँ। मान लो आप एक बड़े सर्कल पे हैं और चार तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, वो जो ट्रैफिक सिग्नल है वो नॉर्मल रहेगा। आपने हर सड़क पे लगभग 200 मीटर तक कुछ सेंसर्स लगाने, और वो सेंसर जो होते हैं बहुत छोटी सी चीज होती है और वो भी डम डिवाइस होती है, उसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, बट उसका एक ही काम होता है सेंसर का, गिनना गिनना। तो हमने क्या किया, हमने एक रोड, हर रोड पे 200 मीटर तक 50-50 मीटर पे 4 सेंसर लगा दिए। बस ध्यान से सुनना है, ये बड़ा सिंपल, आपको बड़ा सिंपल लगेगा, लेकिन आज से 10 साल पहले जब मैंने बनाया था बहुत ही टफ था ये। तो 4 सेंसर आपने लगा दिए, जिस सेंसर का काम सिर्फ एक है, गिनना, 1 2 3 4 5। कैसे गिनेगा? जब गाड़ी उसके सामने से पास होगी वो ऑटोमेटिकली गिनना शुरू करेगा, पहली गाड़ी 1, दूसरी गाड़ी 2, तो उसको रीसेट भी कर सकते हैं। और ये काम जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है, रिले स्विच। आपने अगर अपने फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, रिले स्विच होती है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, जो भी उसके सामने से पास हुआ वो काउंट बढ़ाता जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने वो सेंसर 4 लगाए रोड पे 50-50 मीटर पे, और उस सेंसर का डेटा जो है वो एक सिंपल सा कंप्यूटर लगा दिया जो उस ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक डब्बे के अंदर बंद कर दिया। और आपस में ये लोग कैसे बात करें? थ्रू ए नेट, वायरलेस नेटवर्क। और उस वायरलेस नेटवर्क का अभी तो आजकल बहुत आ गया, बट उन दिनों एक ही होता, 2 होते थे, एक तो वाईफाई जो आप घरों में यूज करते हो, और एक होता था, नया नया आया था, जिग्बी प्रोटोकॉल। तो जिग्बी प्रोटोकॉल इज लाइक ब्लूटूथ काइंड, बट थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे चलता है। तो हमने क्या किया, हमने कहा ओके 4 सेंसर लगा दिए, और पहला सेंसर काउंट करेगा, फिर दूसरा भी काउंट करेगा, तीसरा भी, चौथा भी, गाड़ी आती जाएगी। तो वो इंफॉर्मेशन उस कंप्यूटर में आ गई जिसको हम बोलते हैं एज डिवाइस। एज क्योंकि वो वहीं पे है, तो उस डिवाइस में एक कंप्यूटर रहेगा, वो काउंट करके, सॉफ्टवेयर काउंट करेगा कि इधर से गाड़ियां आ रही हैं। जैसे ही हमने उसमें एक पॉलिसी डाल दी सॉफ्टवेयर में कि जैसे ही नंबर ऑफ व्हीकल्स विल क्रॉस 30 फ्रॉम दिस साइड, इस हम लोग की ज्यादा गाड़ियां तो ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, और जहां से अप टू 10 है उसको रेडी रखो, चाहे वो 2 मिनट भी रहे, क्योंकि जहां गाड़ियां ज्यादा है उसको ग्रीन रखना है, इससे हम लोग गाड़ियां पास हो जाएंगी, वहां पे वो जैम नहीं लगेगा। तो सेंसर ने डेटा भेजा कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसको एनालाइज किया फास्ट, एंड दीज थिंग्स हैपन रियल विद इन 0 मिलीसेकंड। और वो डेटा ट्रैफिक सिग्नल को गया कि भैया इधर से नंबर ऑफ गाड़ियां 20 क्रॉस कर गई हैं, अब तुम रेड हो जाओ। और जो ग्रीन था वो रेड हो गया, सॉरी जो रेड था वो ग्रीन हो गया जहां से गाड़ियां ज्यादा आ रही हैं, और जहां से गाड़ियों की तादाद कम है वहां ऑटोमेटिकली रेड हो गया। लेकिन 2 मिनट के बाद उन सेंसर ने डेटा दिया कि उधर से कुछ गाड़ियां आ रही हैं, ज्यादा आ रही हैं, तो अब इधर से ग्रीन। सो ऑटोमेटिक, सब ऑटोमेटिक। लेकिन इसमें बाद में हमने एक और चीज ऐड की, कुछ सालों के बाद हमने एक लॉजिक और ऐड किया कि अगर मान लो इस तरफ से कोई गाड़ी नहीं आ रही तो उसको हम रेड मान लेंगे, राइट? सो वी कीप दैट सिग्नल रेड। बट हमने उस सेंसर में एक इंटेलिजेंस डालने की कोशिश की कि अगर यहां से एक एम्बुलेंस आ रही है या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ रही है, तो इवन इफ देयर इज नो अदर व्हीकल, प्लीज चेंज दिस टू ग्रीन, ताकि वो एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को रुकना ना पड़े। दैट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस वी पुट इन दैट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला था कि गाड़ियां आएंगी जाएंगी, उसके हिसाब से ट्रैफिक सिग्नल चेंज होगा। सेकंड इज कि गाड़ी को भी आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसके लिए हमें चाहे कितनी भी भीड़ हो लेकिन हमें फिर भी सिग्नल ग्रीन करना है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद इसमें कोई पेशेंट रहा होगा। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट दिस होल
IoT solutioning, and we can create this solution for anything. You just tell me a problem, I can get you a solution for that. So the global definition of IoT is when more things or objects are connected to internet. जैसा मैंने बोला कि 7.5 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ एंड वी हैव 50 बिलियन डिवाइसेस, मतलब कि लोगों के अलावा हर दूसरी चीज भी अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, सो दे कैन डू सम मीनिंगफुल वर्क. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया एम्बुलेंस वाला, आज आपने देखा होगा कई शहरों में एम्बुलेंस फंस जाती है ट्रैफिक में, बट अगर हम ये टेक्नोलॉजी यूज करें कि एम्बुलेंस दूर से ही पता चल जाए 2 किलोमीटर पहले, और उस रोड के सारे सिग्नल ग्रीन रहें ताकि रास्ता ना रुके. इंडिया में एक सिटी है जिसने ये बनाना शुरू किया था, वो था अहमदाबाद स्मार्ट सिटी इन 2018. मुझे पता नहीं उन्होंने फिर उसको पूरा किया कि नहीं किया, क्योंकि गवर्नमेंट के काम जो होते हैं sometimes I don't know, but there are many cities in this world, if you can check, and sometimes you can go, these kind of adaptive traffic management systems are actually working great, and that is where IoT is playing a big role. IoT is changing everything. हमारी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो रही है. आपने देखा होगा अब लोग घड़ियां पहन के ये डिसाइड करते हैं मैं कितना चल रहा हूँ, कितना खाना खा रहा हूँ, कितना स्लीप कर रहा हूँ, राइट? स्मार्ट वॉचेस एंड दोज हेल्थ ट्रैकर्स. अब उसमें हमने एक और इंटेलिजेंस डालने की कोशिश की कि भैया आप चल रहे हो, घूम रहे हो, ये तो आपको पता चलेगा ही, बट अगर आपके हार्ट में हार्ट बीट तेज हो रही है और एक इंडिकेशन हो रहा है कि कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए, तो ये घड़ी आपको अलर्ट करेगी कि भैया आपको हार्ट अटैक आने वाला है. Believe me, these kind of technologies are being built right now. We call them predictive analytics. अगले कुछ सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी हर जगह रहेगी जो आपको पहले ही बता देगी टू एन एक्सटेंट कि कुछ होने वाला है. अब मैं ये नहीं कहूंगा कि फ्यूचर, यू कैन सी फ्यूचर, बिकॉज नो टेक्नोलॉजी इन दिस वर्ल्ड कैन काउंटर नेचर, वो हमने देखा हुआ है. लेकिन कहीं किस हद तक हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं जहां हार्ट अटैक आने से 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले बंदे को एक अलर्ट मिल सकता है कि भैया शायद तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है, कि तुम्हारे बॉडी के सारे पैरामीटर मैं देख रहा हूं ऐसे चल रहे हैं. फॉर दैट यू वेयर अ वॉच, नॉर्मल एप्पल वॉच टाइप, उसके अंदर एक कंप्यूटर रहेगा, वो सारा एनालिसिस करता है. दैट्स व्हाट वी कॉल एज एनालिटिक्स. एंड एज एनालिटिक्स हैज मेड दीज थिंग्स वेरी 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 इजी. चाहे वो गाड़ी हो, गाड़ी में खराब होने से पहले पता चल जाना कि ये गाड़ी रुकने वाली है, या मशीन हो, पहले ही पता चल जाए कि मशीन खराब हो. दीज आर कॉल्ड प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, एंड IoT is making this very very easy for companies and for organizations to decide. And that is why IoT is changing almost everything. ऑलमोस्ट एवरीथिंग. अगले कुछ सालों में आप स्कूल से लेकर, घर से लेकर, गाड़ी से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, होटल से लेकर, गवर्नमेंट की बिल्डिंग से लेकर, एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड. मतलब कि इंसान के आने से ही पता चल जाएगा भैया फलाना बंदा आ रहा है, इसका ये काम यहाँ पे है, शुरू करो. क्योंकि बंदा आ रहा है, उसका कैसे पता चला, उसका फेस रिकॉग्निशन. तो ये चीजें बहुत जल्दी कॉमन होने वाली है, बहुत जल्दी. कुछ कंट्रीज में टाइम लग सकता है, इंडिया जहाँ पे, क्योंकि इनके लिए बजट्स होने चाहिए. बट एक चीज है कि आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लास्ट ईयर स्टार्टेड एन AI ग्रुप विद इन द मिनिस्ट्रीज टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. कुछ समय के बाद आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाय द वे, मैं आज दुबई जाता हूँ तो मेरे को पासपोर्ट स्कैन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती. मेरे रेटिना स्कैन से मैं दुबई एंटर कर जाता हूँ, बिकॉज आई हैव अ 3 year रेजिडेंट परमिट एंड माई रेटिना इज माई एंट्री. तो मेरे पासपोर्ट पे ठप्पा भी नहीं लगता, नहीं तो पहले पासपोर्ट ही खत्म हो जाते थे ट्रैवल कर. सो दीज थिंग्स आर बिकमिंग सो इजी एंड सो कॉमन कि इंसान इटसेल्फ और डिवाइस इटसेल्फ is a चलता फिरता कंप्यूटर, if I tell you in a simple language. So IoT में क्या है? दो चीजें, मशीन टू मशीन, मशीन टू ह्यूमन. दो ही चीजें हो सकती हैं, या हम एक इंसान और मशीन बात कर रहे हैं, या मशीन से मशीन बात कर रही है. क्योंकि इंसान से इंसान तो पिछले हजारों सालों से बात कर ही रहा था. सो M2M, M2H, ये दो मेन कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं IoT में, जिसमें हर चीज आ जाती है. आपके रोबोटिक्स, एनवायरमेंटल सेंसर्स, व्हीकल्स, टेलीमेटिक्स, RFIDs, IP, लाइट बल्ब्स. बाय द वे, आपके घर में अभी आपको शायद मालूम नहीं है, इफ यू डोंट नो यू शुड रीड इट. देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी कॉल्ड Li-Fi, वर्किंग sending internet signals through light bulbs and electric wires, that called Li-Fi. और कई जगह पे ये शुरू भी हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता. यानी कि अब आपको अलग से एक वायर नहीं लगानी पड़ेगी, घर में लानी पड़ेगी, आपकी इलेक्ट्रिकल वायर के ऊपर ही सिग्नल ट्रांसफर हो सकता है. दैट्स कॉल्ड Li-Fi. So there are multiple things which are happening around us due to IoT.
चाहे वो आपका घर हो, गाड़ी हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो। और एवरी इंडस्ट्री, मुझे नहीं लगता आज की डेट में कोई भी इंडस्ट्री, एटलीस्ट आई हैव नॉट सीन इट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कोई भी इंडस्ट्री आप मुझे बता दो जिसमें IoT या ऐसा इम्पैक्ट ना हुआ हो। एग्रीकल्चर, in fact the biggest impact right now which is happening in agriculture sector, agri-tech as we call it, education, healthcare, hospitality, retail, जहां भी आप जाओगे, जो भी आप कर रहे हो इर्द गिर्द, आपको हर जगह एक इम्पैक्ट मिलेगा, हर जगह इसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। एनर्जी, आने वाले समय में आपके घर में स्मार्ट मीटर लगेंगे जो आपको पहले ही अलर्ट दे देंगे कि भाई आपका बिल ऑलरेडी 500 रुपया हो गया है, बताओ क्या करना है। एंड यू कैन एक्चुअली पुट अ पॉलिसी कि अगर मेरा बिल 500 से ऊपर मेरा खर्चा हो गया तो मेरे घर में AC को ब्लॉक कर दो, कोई AC यूज ना कर पाए। फिर अगर मेरा बिल 900 से ऊपर हो गया तो मेरे घर के अंदर जो फालतू की चीजें चल रही हैं, यू कैन डिसाइड, माइक्रोवेव बंद कर दो, ब्लॉक कर दो, माइक्रोवेव नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरा बिल बहुत बढ़ जाएगा। दैट पावर कैन बी विद यू in your app on your mobile once you have this smart grid and smart electricity around your homes, or everything, retail, security, industrial, healthcare, सब कुछ IoT से impact हो रहा है। कुछ problems भी हैं। As I said, the one of the biggest problem is always budget. अब हर कंपनी IoT नहीं लगा सकती because there's always money. तो एक फैक्ट्री जिसमें बहुत से मजदूर हैं, मैनुअल काम कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो कुछ इंटेलिजेंस लगाने के लिए, कुछ डिवाइसेस लगाने के लिए, तो फर्स्ट थिंग दे नीड इज मनी। बट लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, इफ यू डू अ कैलकुलेशन कि आज मैं खर्चा करूं, उससे मेरे को अगले 5 साल में कितना फायदा होगा, विच वी कॉल द टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, दैट इज एक्चुअली डाउन, विच मीन्स कि वो खर्चा करना सही है क्योंकि अगले 5 साल में आप उससे काफी माइलेज निकाल लोगे। लेकिन स्टार्टिंग खर्चा होना बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने डिसाइड किया हम 110 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, राइट, शुरू 20 से शुरू करके 110 तक पहुंच गए। लेकिन जब भी मैं किसी सिटी से बात करता हूं, आज भी कई स्मार्ट सिटी जो CEOs हैं उनके साथ रिलेशन है, व्हाट्सएप पे बात करता रहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं शफकत अली खान, उनके साथ एक व्हाट्सएप चैट कर रहा था। तो ऐसे ही मैं कहा सर कहाँ पहुंचे, क्या चल रहा है? बोले यार कुछ नहीं चल रहा, पहले भी बजट नहीं था, कोरोना के बाद तो टोटली बजट गायब हो गया, तो कुछ नहीं हो रहा है श्रीनगर में। जम्मू में भी शायद कुछ हो नहीं रहा होगा, लेकिन कुछ सिटीज में थोड़ा बहुत कुछ है। दिल्ली में NDMC में कुछ हो रहा है, बेंगलोर में कहीं पे कुछ छोटा मोटा हो रहा है, अहमदाबाद में काफी कुछ हो रहा है, पुणे में काफी कुछ हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ी, हम ये तो चाहते हैं कि हमारी सिटीज एडवांस बने, लेकिन उसके लिए बजट कहां से आएगा? सो प्रॉब्लम इज फाइनेंशियल, प्रॉब्लम इज पॉलिसी चेंज, एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? आपका विल पावर। कई लोग हैं जो नहीं चाहते ऐसी चीजें हो क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है। पहले हम पासपोर्ट के लिए एजेंट को पैसा देते थे, मैंने पहला पासपोर्ट बनाया, लाइन में खड़ा रहना पड़ा, सुबह 4 बजे जाके टोकन मिलते थे। दूसरी बार मैं गया ही नहीं, मैंने कहा भाड़ में जाओ, मुझे नहीं जाना, मैं एजेंट को 2000 रुपये दे दूंगा, मैंने दिया है। लेकिन आजकल पासपोर्ट कैसे बनता है? आप ऑनलाइन फॉर्म भरो, घर में बैठ के आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, उस डॉट टाइम पे जाओ, उससे 15 मिनट पहले जाओ, आधे घंटे से पौने घंटे में आपका काम खत्म हो जाता है पासपोर्ट ऑफिस में। ये मेरे लास्ट 2 पासपोर्ट में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और आने वाले टाइम में चूंकि पासपोर्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर आपका एक कार्ड होगा, चिप होगी जिसमें सारा डेटा होगा, आपको वो ऑनलाइन ही वो करनी पड़ेगी, तो ऑनलाइन ही सारे काम हो जाएंगे, आपके घर पे आराम से वो कार्ड आके डिलीवर हो जाएगा। दिस इज हाउ थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू IoT। हाँ, थोड़े चैलेंजेस जरूर हैं विच आर बीइंग हैंडल्ड। नाउ IoT के फ्लेवर बहुत हो गए। जैसा मैंने कहा कि सिस्को एक्चुअली सेड कि इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, भैया नॉट ओनली थिंग्स बट एवरीथिंग, because Cisco believed that network has the power to change tomorrow, right? तो उसके लिए Cisco created this concept called Internet of Everything. Dell created another concept called Intelligent Quotient of Things, IQT. They said no IoT, but intelligent. सब चीजें कनेक्ट भी होनी चाहिए और ऑटोमेटिक हो जानी चाहिए, इंटेलिजेंट हो जानी चाहिए. That was Dell's फंडा. एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट, ये मैंने आपको बता दिया, विच मेड IoT पॉसिबल, स्टार्टिंग विद बेसिक कनेक्टिविटी, फिर हमने उसमें बहुत ई-कॉमर्स, सप्लाई चेन ऐड करना शुरू किया, उसके बाद हमने सोशल मीडिया, आपस में मैसेज भेजना, वीडियोस भेजना, फाइनली इट्स कनेक्टिंग पीपल, डेटा, थिंग्स एंड प्रोसेस. दैट इज व्हाट सिस्कोज वर्जन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज. And Internet of Things or Internet of Everything is delivering a bigger value. As I said, machine to machine, machine to people, people to people, मतलब everything to everything. अगर हम एक सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. मैं अपने घर से बात कर रहा हूँ, मेरा घर एक दूसरे घर से बात कर रहा है, वो एक कार से बात करते हो, इनडायरेक्टली आई एम कनेक्टेड टू दैट कार, राइट?
So this is happening. Retail. Let's take some examples. रिटेल मतलब जहाँ पे आप शॉपिंग करते हो स्टोर में. आजकल रिटेल में क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक बिलिंग, बार कोडिंग भी अब खत्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. आपने चीज उठाई, ऑटोमेटिक बिलिंग हो जाएगी. आपने कुछ वीडियो अगर आप देखोगे, एक अमेजन स्टोर है, फुल्ली ऑटोमेटिक. आप जाओ, चीजें उठाओ, बाहर निकल जाओ, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा, कैलकुलेशन हो जाएगी, बिलिंग हो जाएगी, आपके क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट भी हो जाएगी. तो रिटेल इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इन अ बिग वे. रिटेलर्स के लिए विजिबिलिटी ऑफ देयर इन्वेंट्री, कितना हो गया, कितना माल बाकी है, कितना खत्म हो रहा है. बिफोर क्या होता है, नहीं तो कई बार सुबह जब आप एक स्टोर वाले ने स्टोर खोला, कस्टमर आया कि सर मेरे को बिस्किट चाहिए फलाना, सॉरी देखा, ओ सॉरी सर वो है नहीं. बिफोर दैट बिस्किट गेट्स ओवर, कैन द स्टोर सेंड ऑटोमेटिकली सिग्नल टू सप्लायर कि भैया मेरा बिस्किट खत्म हो रहा है, अगले 2 दिन में हो जाएगा, प्लीज भेज दो. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग टुडे. चाहे उसमें रखे फ्रिज का टेम्परेचर मैनेजमेंट हो, या उसके अंदर रखी सब्जियों की ये खाने की चीजों की एक्सपायरी डेट मैनेजमेंट हो, एवरीथिंग इज हैपनिंग automatically today, and that is what the power of IoT is in retail. In manufacturing, factories or plants mein, everything is connected to everything, which means there are a lot of things which are happening. Remote monitoring, you don't have to stand in that factory. पहले क्या होता था, in that heat, गर्मी में लोग काम कर रहे हैं. आजकल सारा काम रोबोटिक्स हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता. इंसान पीछे बैठ के कंप्यूटर पे सारे काम कर रहे हैं. तो which means you don't have to be there. Remote asset monitoring, predictive maintenance. फैक्ट्री डाउन होना is a big cost. तो जिससे पहले कि फैक्ट्री डाउन हो जाए, उसका कोई पार्ट डाउन हो जाए, you get alert कि ये मशीन डाउन होने वाली है, इसको बचा लो, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा. So everything in a factory. By the way, I had a big opportunity to work on the IoT for one of the biggest automobile manufacturing plants of this country, which is Mahindra and Mahindra plant in Pune, जहाँ पे SUVs XUV बनी सबसे पहले 2011 में. So 2009-10 में I spent around 2 years. We developed and designed the entire automation for Mahindra's Pune plant. And that plant has been working for last 10 years now, 9 to 10 years without any break. हमने कभी सुना नहीं न्यूज में कि IoT खत्म हो गया या बंद हो गया, वो प्लांट चल रहा है. And that's a great achievement, because a lot of cost is being saved by those kind of devices. Government and public sector, they have to use IoT in a big way. For example, citizen experience, assets. आपकी बसें हैं, गवर्नमेंट में क्या होता है, बस आ रही है, अचानक बीच रास्ते में खराब हो जाती है. ये बड़ा कॉमन देखा है मैं दिल्ली में भी देखा हुआ है, बेंगलोर में भी देखा हुआ है. बस खड़ी हुई, बस चलते चलते बंद होगी, क्योंकि बस की लाइफ खत्म हो चुकी है, ये उसका पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, बट दे don't know, and that is where predictive maintenance and predictive analytics work. So before that bus gets down, can I get a signal, at least alert, at least 4 days earlier or 1 week earlier कि भैया ये बस खराब होने वाली है, इसको बचा लो. Similarly, energy, building energy, new revenue streams, आपका employee productivity, that's a big problem in government, we all know. So all these things can be managed by IoT in a bigger way. Some places it's happening. Some government buildings I have seen and I have worked where buildings with CCTV, video analytics, connectivity, analytics of data, and that data getting back to users of that building to tell them क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है. It's happening. So that way, public sector is using Internet of Everything or Internet of Things in a much better way. Okay. So business opportunities. Now companies like us, we can use IoT as a basic foundation to create solutions. Today we're talking of digital healthcare. Today morning I made a public announcement. Gokadal and one of our provider solutions called Swayam has been picked up by Accenture in Dubai for its market access program. जहाँ पे Accenture wants to roll out some digital healthcare, and they were looking for a digital health solution which works on IoT, and they could select Swayam last week. We had around 3 weeks of that process, and finally they announced that we are selecting Gokadal for our healthcare partnership. That's a big thing for us, because we look at IoT in every respect. Healthcare, yes, we are working on that. Water management, we have 2 solutions on that. We've got solutions on energy management. We've got solutions on building management, smart home, smart building, smart cities, everything. So everything around us is creating an opportunity, and we are the company which can actually get these opportunities
faster because we understand IoT much better. How IoT is helping? Number one, costs. आहिस्ता आहिस्ता कॉस्ट कम हो रही है. पहले जो IoT सेंसर 100 रुपए का आता था, आजकल मैंने देखा वो 10 रुपए का आ रहा है. अभी कुछ दिन पहले एक ऑटोमेटिक सैनिटाइजर के लिए किसी से मैं बात कर रहा था कि जैसे ही आप घर में घुसो सैनिटाइजर शुरू हो जाए, तो उसके लिए एक मोशन सेंसर लगता है, राइट. जैसे ही आपको नजर आएगा कुछ हिल रहा है, वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाए. वो मोशन सेंसर आज से 4-5 साल पहले मैं खरीदा था 3,500 का. अभी मैंने देखा तो 750 रुपए का मिल रहा है मार्केट में. Amazon.com पे मिल जाता है. सो क्लाउड, वायरलेस, मोबिलिटी, इन सब चीजों की वजह से IoT जो है उसका कॉस्ट कम हो रहा है. पहले लोगों को बहुत महंगा लगता था IoT अपनाना. अभी घरों में इफ यू आस्क मी, आपके घर में सारी लाइट्स जो हैं, फैंस और लाइट स्विचेस, उसको मैं विद इन 1 आवर ऑटोमेटिक बना सकता हूँ विद वाईफाई. एंड यू डोंट हैव टू चेंज योर स्विचेस. लेट मी टेल यू, आपको कोई वायर चेंज करने की जरूरत नहीं अपने घर में. लेकिन 1 घंटे में मैं आपके घर की सारी इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, आपकी स्विचेस, आपके प्लग्स, सॉकेट्स और फैन सॉकेट्स, सबको 100% वायरलेस पे कनेक्ट करके ऑटोमेटिक बना सकता हूँ. आप पूरा घर जो है वो पूरा एक ऐप से चला सकते हो. That is possible within 1 hour because we have devices available in the market now. Okay. Now, the second part of IoT, which is happening very fast, is cloud. IoT, as I said, creates data, manages data, analyzes data. अब उस डेटा का हम क्या करेंगे? उसको हम क्लाउड में ले आएंगे और वहां पे हम उसको डेटा को एनालाइज करके इंसाइट करेंगे जो बेच सकते हैं. एंड दिस इज क्रिएटिंग ए बिग रेवेन्यू स्ट्रीम फॉर मेनी कंपनीज, जो दूसरों का डेटा लेके उसको सिर्फ एनालाइज करके दूसरों को बता देते हैं, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ये मशीन डाउन हो सकती है, आपके घर में ये इशू हो सकता है, आपकी लाइफ में इशू हो सकता है. दैट डेटा एनालिटिक्स ऑन द गो इज द नेक्स्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज. आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, वो भी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे. आपको खाली डेटा निकालना है, कस्टमर का डेटा ऑटोमेटिकली आपके प्लेटफॉर्म पे आएगा, ऑटोमेटिकली एनालाइज होगा, ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट कस्टमर के पास आएगा एंड यू गेट पेड फॉर एज ए सर्विस based on how much data you have analyzed per GB, 100 GB, 200 GB. एक महीने में you multiply that by per GB cost, you get paid for that. That is creating a new revenue stream, and we are going to apply these in every place. Smart cities, agriculture, manufacturing, mining, utilities, ports. By the way, अभी हम कुछ दिन पहले, I think we were talking about a smart port kind of thing. Education, healthcare, which is one of the fastest growing field under IoT right now, because thanks to this COVID situation. And every industry, these are some of the benefits what the industries are getting because of IoT. Look at manufacturing, up to 53% of business improvement in their business. 53%. Healthcare. Everything in healthcare is getting connected via IoT today. आपके एक्सरे मशीन्स, MRI स्कैन्स, मिनिमम टेम्परेचर, आजकल तो कोविड की वजह से आपको टच नहीं करना, तो टचलेस टेम्परेचर, टचलेस ऑक्सीजन, दैट्स हैपनिंग टुडे. स्वयं इज अ गुड एग्जांपल जो हमने गोकदल पे रखा हुआ है. स्मार्ट बिल्डिंग्स is a good example, which we just did a project with RMZ in Bangalore. Smart parking, smart traffic management. So I cannot get into detail of each and this, but I just want to give you an idea कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो IoT से इम्पैक्ट ना हुई हो. कोई भी ऐसी चीज आज की डेट में नहीं है. अभी टोल इज अ लेटेस्ट एग्जांपल. पहले हमें टोल पे रुकना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, झगड़ा होता था. आजकल क्या है, टोल पे आप जाके सिर्फ आपकी कार जैसे ही टोल के पास पहुंचे, टोल गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता है. हाँ, योर कार शील्ड शुड हैव द टोल स्टिकर एंड उसके अंदर पैसा होना चाहिए. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Smart grid, electricity. I gave you an example of smart metering in your homes. I just saw a news today morning, even in cities like Srinagar, they are launching this smart meter project. I think very soon, in next 1 or 2 months, they are launching this. So guys, this is all about IoT. We are dot on time, but I will still take 3-4 minutes for any questions. And I would like you to think more about this, how we can create newer applications on IoT. We want new applications, new ideas, robotics, drones, but I want to show you one other side of IoT also. When we look at all the benefits and look at all the positive things, what IoT is doing, what technology is doing, we also have the other side, जहाँ पे technology का misuse भी हो रहा है या हो सकता है. उसके लिए I'm going to show you just a 1.5 minute video. वो आप एक अच्छी तरह देखो कि हम
ये भी एक एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का. थिंग्स कैन गो एक्चुअली बैड, बट दैट डजंट मीन वी आर स्टॉपिंग things. What it means is we need to prepare solutions to tackle those things, or we need to prepare applications to tackle those things, right? So let me just show you a kind of a video, and please tell me if you're able to see that. Guys, are you able to see the screen, video screen? Yes, Yes. sir. Okay, I'm going to start it. एक अच्छी तरह. 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. This is a small drone, एक बहुत छोटा सा ड्रोन, बहुत छोटा ड्रोन जो रिमोटली कंट्रोल होता है और ऑटोमेटिकली. बट ये ड्रोन क्या कर सकता है वो आप देखो. Your kids probably have one of these, right? Not quite. AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Device these days. It has cameras. It does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, it's pretty much Anyway, so you can see it online. It's on YouTube. What is happening now? Drones automatically can detect the person with facial recognition कि हाँ यही बंदा है जिसको मुझे मारना है. And drones can go and actually kill that person with a gun or with a shot which is inside the drone. So today drones are being used for warfare. Drones are being used for even misuse in some cases. But every technology has a second aspect, cyber security aspect. What we have to do is we have to make sure that we create solutions or we work on solutions which are for good. And if there are something bad, we create applications to counter those bad things. This is exactly what IoT, artificial intelligence, and data is doing today, right? So since we have only 2-3 minutes left, I will stop here. I am very sure you would have got a very good sense, especially our trainees and interns who are new, क्योंकि कॉलेज में ये सब नहीं सिखाते unfortunately, और दुनिया में यही चल रहा है. So I would like to open now. I want people to ask as many as questions you can. Don't shy. You can ask any question. I want you to understand and also think कि और क्या हम कर सकते हैं. अभी देखो मतलब बैठे बैठे आपको कुछ भी आइडिया आ सकता है कि मैं एक ऐसा ड्रोन में एक ऐसा सिस्टम कर सकता हूँ या मैं रोबो ऐसा बना सकता हूँ जो ये काम करे, क्योंकि दिस इज व्हाट वी वांट फ्रॉम यू गाइस. दिस इज व्हाट वी वांट टू बिल्ड आवर नेक्स्ट जर्नी around these intelligent and data driven kind of applications. Okay, so I'll stop here guys, and I would like any of you to ask any questions. Please go ahead. Am I still audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, I look at our trainees to actually ask questions, because या तो उनको समझ ही नहीं आया या समझ आया तो समझ नहीं आया, तो they should ask questions. If you're not asking questions, which means you are either not attentive or you didn't understand anything, which is bad. Or any feedback you have. Hello, Yes. Rajiv here. Yeah, Rajiv. That जैसा आपने एक्सप्लेन किया है, हम्म, आई थिंक जो भी हमारे पास एसेट्स हैं, हम्म, विदाउट उनको डिस्टर्ब किए हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं. हाँ जैसा हाँ बिल्कुल. इलेक्ट्रिकल है, हम कहीं से भी उसको रिमोटली ऑफ ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. Exactly, तो exactly. एक प्लस पॉइंट है
आपके पास कोई सिस्टम है, मान लीजिए आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है आपके पास में, हम्म, विदाउट हम डिस्टर्ब उसको जो भी स्ट्रक्चर है उसको विदाउट डिस्टर्ब किए हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं हम्म, हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किस हम्म, सा बंदा आ रहा है, किस मोटिव से आ रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना, बिल्कुल क्या है बिल्कुल। उस आने का, तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं विदाउट हम अपना जो स्ट्रक्चर हमने लगा रखा है सीसीटीवी कैमरा का वो हम्म। डिस्टर्ब नहीं करेंगे और हम अपनी चीज को अपग्रेड कर सकते हैं। एक इन आईओटी का एक ये भी फायदा है। इनफैक्ट राजीव, सिंस यू सेड दैट, एंड हम सब तो एक्स बीएसएफ वाले ही हैं काफी लोग। BSF has started putting IoT on the border side हम्म, with something called virtual fencing हम्म। and drones together. तो अभी अब स्टार्ट बीएसएफ वालों को सारी रात जाग के ये देखने की जरूरत नहीं है कि कोई बंदा पाकिस्तान की तरफ से अंदर आ रहा है तो उसको गोली मार दो। वो काम सारा ऑटोमेटिक हो रहा है, बंदा अलर्ट होगा, डिटेक्ट होगा, अलर्ट जाएगा, यहाँ से ड्रोन जाएगा, उसको गोली मार के वापस आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी कॉल साइबर वॉरफेयर, और ये होना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। तो मेन बेनिफिट ये है कि आदमी अगर अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कुछ भी देखें, हमारा कोई एसेट्स को डिस्टर्ब नहीं करना, हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना, हाँ, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, लाइफ डिस्टर्ब सेव हो जाएगी। सबसे बड़ी बात जो है लाइफ सेव होगी। अपग्रेड कर सकते हैं उस चीज बिल्कुल बिल्कुल। विद द यू आर हेल्प ऑफ आईओटी, विद द हेल्प ऑफ आईओटी। राइट, एब्सोल्युटली। सर उसमें बग भी तो होगा ना फिर? दैट इज द सॉरी, बेनिफिट ऑफ आईओटी। या राजीव, सॉरी, somebody asked me something. सर जसविंदर है। हाँ जसविंदर बोलो। सर उसमें बग भी तो होगा ना, अगर किसी की बॉडी लैंग्वेज ही वैसी है, थोड़ा एग्रेसिव टाइप, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख के उसको प्रिडिक्ट करके उसको मतलब शूट एट साइड हो गया फिर? देखो जसविंदर, दो बातें, यू आर राइट। उसमें एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है आज की डेट में। मान लो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डाल दी कि किसी की बॉडी लैंग्वेज देख के उसको गोली मार दो, आई डोंट थिंक दैट्स अ राइट थिंग। बट वी नीड टू बिल्ड अ सोल्यूशन इन अ वे कि उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका फेस रिकॉग्निशन, उसका 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 मॉनिटर करना होगा उसका हार्ट रेट। नंबर वन। बट एक चीज आप और नोट करो, जो क्रिटिकल लोकेशंस हैं जैसे बॉर्डर है, उसमें क्या होता है कि चाहे वो बंदा, कई केसेस ऐसे हो चुके हैं कि बंदा गलत नहीं था लेकिन वो ऐसे आ रहा था कि उनको लगा ये कुछ करेगा, उन्हें गोली मार दी। श्रीनगर में ऐसे 2-4 केसेस हुए हैं। बाद में पता चला कि बंदा एक्चुअली गलत नहीं था, बट उसने या तो गलती से या ऐसा नाटक टाइप किया कि मैं गन निकाल रहा हूँ पीछे से जेब से, तो उसको गोली मार दी गई। तो ये तो नॉर्मल केसेस में हो ही रहा है अभी भी, मैनुअल केसेस में। The only thing what can help us when we put everything on technology is कि technology can actually analyze things much further। इंसान का दिमाग जो होता है ना, वो तो सबसे बेस्ट है, बट उसमें कई बार क्या होता है, आप बायस्ड भी हो जाते हैं, प्रेजुडाइज्ड हो जाते हैं कि मुझे दिख रहा है ये बंदा कुछ करेगा करेगा, मैं देखूं 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 देखूं, गोली मार दूं। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी उसकी जगह है तो टेक्नोलॉजी 15-16 फीचर इकट्ठे चेक कर सकती है, एनालाइज कर सकती है और फिर जाके डिसाइड कर सकती है कि मुझे क्या करना है। सो वन वे, यू आर राइट, दैट मीन्स वी नीड टू मेक इंटेलिजेंस मच मोर इंटेलिजेंट कि वो खाली हाव भाव देख के गोली ना मार दे, और भी फैक्टर होने चाहिए उसके पीछे। यू आर राइट। थैंक यू। फेस रीडिंग उसमें होता है ना, फेस रीडिंग भी करेगा वो। हाँ, वही खाली फेशियल रिकॉग्निशन है, हाव कुछ भाव है, हाँ, और उसकी बॉडी में अगर कोई गन है तो वो भी डिटेक्ट हो वो सकती है आज detect की कर डेट में। कि यस, वो किस लिए लेके आ रहा है, हाँ, या उसको हम गोली ना मारे पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ किस इंटेंशन से आया, तो वी आर रेडी। हम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, बिल्कुल। उससे क्वेश्चनिंग कर सकें या फिजिकली उससे बात कर सकें, जो भी है वो हम कर सकते हैं। ये चीज है। राइट राइट। एनीवे, गोली सो मारा लास्ट ऑप्शन है, अगर कुछ नहीं तो फिर आप गोली मारना ही मारना। हाँ हाँ, वो तो है ही, वो तो लास्ट रिजॉर्ट है ही है। एनीवे guys, sorry, our trainees team, please ask questions if you have, or anybody else, any input, any question, any new idea you can think of. Okay, so if we have no questions, no worries. Anyway, we are already on time. So guys, this was our first technical training session. We will continue these sessions every Friday. Today we had IoT. Next week I would like to bring another expert, maybe either on cyber security, because वो भी एक बहुत ही critical चीज है हम सब के लिए. Cyber security, artificial intelligence, blockchain, then we have data analytics, then we have augmentation, then we have technologies new age like machine learning. We'll continue these sessions every week, same time, and we will make sure that all of us
remain updated about the latest technology and latest happenings in the market. But 1 घंटे में आप मास्टर नहीं बन सकते, तो please have a habit of reading. Online you got thousands and millions of resources. YouTube पे आपको वीडियो मिल जाएंगे, आपको ब्लॉग्स मिलेंगे, आपको न्यूज मिलेंगी. Keep a close watch and keep reading, and that will give you ideas कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कुछ नया बनाना चाहता हूँ, मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, या एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिफाइन कर सकता हूँ. तो आपके इर्द गिर्द आपको प्रॉब्लम नजर आएंगी कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ. Think about that and bring it to us. अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, as I said in the beginning, उस आइडिया को डेवलप करके मार्केट में लाना, वो जिम्मेदारी हम लेते हैं. Right? So think about these things, read about these things, because this is what the future is going to be. चाहे आप करियर के हिसाब से सोचो या लाइफ के हिसाब से सोचो, दोनों हिसाब से this is future. And as I mentioned last time, you either get disrupted or you get perished. अगर आप चेंज नहीं होंगे तो दुनिया खत्म कर देगी आपको. दिस इज द नॉर्म टुडे. जो कंपनीज चेंज नहीं हुई वो खत्म हो गई. जो लोग चेंज नहीं हुए बिकॉज ऑफ डिजिटल, वो लोग अब कुछ खास कर नहीं पा रहे. दैट इज द प्रॉब्लम. सो विद दिस वी क्लोज दिस सेशन टुडे. we'll keep on having these sessions. Let us focus what we are doing right now. Monday we will have our a weekly meeting and we'll talk about some good things. This week we have some good things for you, good news for you, good updates for you. We'll talk all about